students. How are you all? I hopefully believe that you all are quite fine. Guys, over here we will read about second chapter from your textbook First Flight. And in your First Flight there is second poem, A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris. So over here we will discuss about the poet, about the poem A Tiger in the Zoo, and summary of the poem. First of all, we will discuss about the poet Leslie Norris. Actually, he was a prize winning Welsh poet and short story writer. He is from Wales, and he taught at academic institutes of Britain and also United States of America, including Brigham Young University in United States. And Norris is considered as one of the best famous poet and short story writer of the Wales. So now about the poem we will know. In this poem, Leslie Norris explains the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. एक्चुअली इस पोम में, इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने एक बाघ के, एक टाइगर के एगोनी को, दर्द को, पीड़ा को, उसके दुख को, उसके असहाय जीवन को चित्रित किया है, व्यक्त किया गया है, प्रस्तुत किया गया है इस कविता के माध्यम से. टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ. And in this poem, the poet Norris has tried to explain about the condition of an animal that are caged by human being for their own sake, for their own fun, for their own entertainment, enjoyment, joy. एक्चुअली इस कविता में नोरिस ने जानवरों को किस प्रकार केज में, पिंजरे में, चिड़ियाघर में, बिहाइंड बार्स, इन द केज, कैसे जानवरों को रखा जाता है, बंधक बनाया जाता है, और यह सारा जो है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, मानव के द्वारा किया जाता है, ओनली फॉर द सीक ऑफ एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट. अपने आनंद के लिए हम उनको चिड़ियाघर में रखते हैं, उनको पिंजरे में बंद करके रखते हैं, जैसे कि तोता है, टाइगर है, अदर जो एनिमल्स हैं. वी डू नॉट ट्राई टू लीव देम फ्रीली, टू लीड देयर लाइफ फ्रीली. हम उनको क्या करते हैं, कैद करके रखते हैं. सो इन दिस पोएम नोरिस हैज ट्राई टू इलस्ट्रेटेड according to a tiger in the zoo. Now summary of the poem Tiger in the Zoo. In this poem, the poet contrasts a tiger in the zoo with tiger in its natural habitat. इस कविता में नोरिस ने एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर के पिंजरे में रहता है और एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक निवास में रहता है, जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, इन दोनों के बीच क्या कंट्रास्ट है, क्या पैराडॉक्स है, नोरिस हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन इन दिस पोएम. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल. यह कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर का चित्र प्रस्तुत करती है. अगेन इट टर्न टुवर्ड्स जू, और फिर यह चिड़ियाघर के टाइगर का की जो स्थिति है, जो दृश्य है, उसको प्रस्तुत करती है. एंड
नोरिस हैज पोर्ट्रेड हिज विजन, उसने अपने दृष्टिकोण को चित्रित किया है, पोर्ट्रेट किया है इस कविता में। द पोएम प्रोवाइड्स also a contrast in the mood and environment of a tiger when he lives, when he is in a forest and when he is in a zoo. अगेन नोरिस ने ये व्याख्या किया है, दिखाया है, प्रस्तुत किया है कि जब एक टाइगर चिड़ियाघर में रहता है तो उसकी क्या मेंटल कंडीशन होती है, क्या उसकी मेंटालिटी होती है, क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या मूड होता है। और जब वो वही टाइगर बाघ अगर जंगल में जाए, जंगल में रहे जैसे कि दूसरे रहते हैं, उनके मूड, एनवायरनमेंट, मेंटालिटी एंड उनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इम्पल्स है, वो कैसा होता है, इस कविता के माध्यम से बताया गया है। इन द जू actually a tiger has no freedom and in the forest, in the jungle, a tiger lives in his own, in its own eagerness, desire, whatsoever a tiger life can do in a forest freely. There is no foundation, no boundary, no obstruction for the tiger in the forest, in the jungle, but there are so many obstructions, so many bars, so many problems for a tiger who is in a zoo, behind bars or in cage. So in the zoo a tiger has no freedom. He is kept in a cemented cell behind the bars and he feels angry, frustrated and helpless. He is full of agony, melancholia. उसके जीवन में कुछ नहीं है, केवल दुखी दुख है, because he is living behind bar, living in cage. He is encaged, उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, चाहे वह चिड़ियाघर का हो या अन्यत्र का हो। And he is living in a cemented cell, एक सीमेंट की बनी हुई, कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में रहता है। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट, लेकिन फिर भी उसको उसका प्राकृतिक निवास जो कि जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, वो उसको हमेशा याद आता है। हमेशा वह टाइगर इन द जू याद करता है नेचुरल हैबिटेट को। He's hiding and sliding in the long grass near the water hole and his paws upon the deers, और उसका जो शिकार है, जंगली जो हिरन है उन पर, और जंगल की घासों पर सरकने का, रहने का, उनके बीच में घूमने का जंगल में, ये सारा का सारा जो उसकी अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो प्रवृत्ति है, इम्पल्सेज हैं, ही हैज टू सप्रेस। हियर ही का प्रयोग किया गया है टाइगर के लिए। वी कैन स्पीक एंड द वे टू, अब दूसरी तरफ जो टाइगर रहता है जंगल में, उसके लिए क्या है कि वह जो है लंबी लंबी घासों पे सरक सकता है। He's hiding and sliding in the long grass near the water holes, and also he tried to capture fat deers also, मोटे मोटे हिरन को जो जंगल में रहता है टाइगर, उसको पकड़ सकता है, उसको अपना वो आहार बना सकता है। The way he terrorized the villagers, displaying his sharp teeth and claws, वह तो गांव के जो विलेजर्स हैं, जंगल के बाहर जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहाँ के लोगों को टेरराइज कर सकता है, अपने शार्प टीथ को दिखा सकता है, अपने पंजे को दिखा सकता है, और वो अपने टेरराइज कर सकता है, उसके करीब कोई नहीं जा सकता। बट द जू में जो रहता है टाइगर इन द जू, ही कैन नॉट डू सच ए cannot create such environment in his own life,
but at night in the zoo he hears the sound of patrolling cars. कह रहा है कि जो जू में रहता है टाइगर, वो तो सिर्फ ये सुन सकता है कि रात में जो कार के से पेट्रोलिंग करते हैं चिड़ियाघर के मेंबर्स, सिर्फ उसको सुन सकता है. एंड द टाइगर इन द जू appears helpless as to move शो पीस. वह तो सिर्फ एक शो पीस बन के रह गया है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक जरिया बन के रह गया है. ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज लाइफ. वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, बस लोगों के लिए एक शो पीस बना हुआ है एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल. द पोएट वांट्स टू कन्वे हियर that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat. पोएट ने स्पष्ट यहाँ पे कहा है कि जानवरों को उनके जो है वास्तविक जो आवास, जो निवास है, जंगल है, फॉरेस्ट, उससे दूर करके हम उनको छोटे स्थान में कैद करके रखते हैं, जो कि यह एक क्रूएलिटी है, एक टायरेनिकल मेंटालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है. दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज. कोई भी जानवर पिंजरे में रहना नहीं चाहता. दे फील हेल्पलेस, अनहैप्पी, दे फील सच ए सॉरोफुल sadness, melancholy and depressing distress in their life when an animal is in a cage or behind bars. He pays no attention to the visitors who come to watch him in the silence of the night, and he stares at the brilliant stars with bright eyes. कह रहा है कि चिड़ियाघर का जो बाघ है, जो टाइगर है, he does not pay attention. वह कोई ध्यान नहीं देता है वहाँ पे आने वाले जो यात्री होते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं. he pays no attention. वो ध्यान नहीं देता है. हम उसको टाटा करते हैं, सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, बस उसके जीवन का जो अंधकार है, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट थिंक, वी कैन नॉट इमेजिन. सो आपने कभी चिड़ियाघर अगर गया होगा, आपने देखा होगा, दैट यू कैन फील अबाउट दोज क्रिएचर्स. So thank you all of you. Have a pleasing day. Thanks.